Okay, NCRT exercise 5.1. Give the magnitude and direction of the net force acting on a drop of rain falling down with a constant speed. The drop is moving downward with constant speed. Moving downward with constant speed. That means there is a net force, one force that is weight and up thrust. Okay, that is called viscous force. Okay, uh, these two forces are balanced. That means the net force is zero. Second, uh, a cork of mass 10 gram floating on water. Net force is again zero because it is floating. It is floating. It is floating. That means the weight and the bound force are balanced. Okay, next one, that is third C. A knife skillfully held stationary in the sky. A kite, sorry, not like a kite, skillfully held stationary in the sky. Stationary है इसका मतलब net force is again zero. Okay. Next one, D. A car moving with a constant velocity of 30 km per hour on a rough road. Net force again zero. Okay. Last one, a high speed electron in space far from all the gravitating object and free free of electric and magnetic fields. Again, no force is acting, that means net force is zero. Okay, a pebble of mass, next question, 5. A pebble of mass 0.05 kg is thrown vertically upward with give the direction and magnitude of the net force on the pebble during its upward motion, during its downward motion. कोई ऑब्जेक्ट है उसको थ्रो किया गया अपवर्ड, अपवर्ड थ्रो किया गया, तो इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना है. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, ये अपवर्ड जा रहा है. अगर इसको थ्रो किया जाएगा तो ये इसकी स्पीड डाउन होती चली जाएगी, है ना. इस पे हमेशा एक ही फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, वेट. तो एक्सेलरेशन जिधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, जिधर फोर्स लग रहा होगा, acceleration, the direction of acceleration will be that. The direction of acceleration is the same as the direction of force. Means upward motion कर रहा है, ये velocity ऊपर की तरफ है, लेकिन इसका acceleration downward है. ठीक है. इसी तरह से ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन ये नीचे ऊपर जाने के बाद फिर वापस आएगा, ये नीचे की तरफ है, तब भी उस पर वेट ही लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है. इसका मतलब acceleration again downward. Means acceleration in both the cases downward. Third point, at the highest point where it is momentarily at rest. Highest point पे पूछा हुआ है, highest point पे भी इस पे एक ही फोर्स लग रहा होगा, इसका नाम है weight. Okay, again the force is downward, vertically downward. Okay, easy है, कुछ नहीं है, हमेशा उस पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है बिकॉज इट इज इन फ्री फॉर्म और हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ध्यान रखना कि हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो. इस बात को याद रखना, इस बात को समझ रखना. ओके, नेक्स्ट 5.3. Give the magnitude and direction of the net force acting on a stone of 0.1 kg just after it dropped from the window of a stationary train. एक stationary train के से ये just drop की जाती है तो क्या होगा बताओ. Give the magnitude and direction of the net force acting on the stone of 0.1 kg just after it is dropped from the window of a stationary train. क्या होगा बताओ. डाउनवर्ड जाएगा, सो फोर्स कितना लगेगा, 0.1 mg, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय g 9.8 या 10 कह लो.
अगर 10 के लोगे फिर 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 1 न्यूटन. Vertically downward. Next is just after it is dropped from the window of a train running at a constant velocity of 36 किलोमीटर. ये विंडो है, इसकी ट्रेन जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, और इस पे जो एक्सेलरेशन जो लग रहा है जी के बराबर लग रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ध्यान रखना इधर की तरफ वेलोसिटी है 36 मल्टीप्लाइड बाई 5/18. इट इज 10 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन. अगर ये भी एक्सेलरेशन होता है, ये भी एक्सेलरेशन होता, तो दोनों को क्या करते हैं, वेक्टर वेक्टर समेशन कर दें. लेकिन एक डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी है. मींस इन दिस डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज 0. एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन दैट विल बी डाउनवर्ड. एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, इसलिए नेट हमारा उसी डायरेक्शन में हो जाएगा. नेट एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड. तो इसमें सेकेंड वाले में लिखेंगे जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. सेकेंड का ऑप्शन भी हमारा वही हो जाएगा. नेट फोर्स इज, है ना, वेट के बराबर हो जाएगा, एम ए के बराबर हो जाएगा. एम दिया हुआ है 0.1 और ए जो है वो 10 है, तो 1 न्यूटन होगा और वो डाउनवर्ड. 1 न्यूटन एंड डाउनवर्ड. Third one, just after it is dropped from the window of a train, accelerating with 1 meter per second square. अब बोल रहा है कि ये वेलोसिटी नहीं है, बल्कि अब एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन इज नाउ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब दो एक्सेलरेशन हो गया. अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें. समझ में बात. एक एक 1 मीटर का है ऐसे, और एक 10 का, थोड़ा बड़ा बना. ठीक है. A is equals to 10 meter per second square. A is equals to 1 meter per second square. What will be the resultant? Resultant will be this. That will be. And this is the letter suppose theta. और अगर डायरेक्शन की बात करें तो tan theta is equals to perpendicular upon base. Perpendicular it is what? 1 upon base it is 10. Theta is equals to tan inverse 1/10 from the vertical. ये डायरेक्शन हो गया. ठीक है. अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो नेट एक्सेलरेशन दैट विल बी इज इक्वल टू a1 एंड a2, यानी कि 10 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90. जीरो हो जाएगा ना, बिकॉज बोथ एक्सेलरेशन आर एट 90 degree angle, and resultant, the formula of the resultant is r is equals to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. Cos theta will be 90 degree, that means this term is 0. That means under root 101. It is approximately 10. Approximately 10, not equal to 10. Okay, if you multiply by 0.1 again. Okay, done. Fourth, lying on the floor of a train which is accelerating with a 1 meter per second square, the stone being at rest relative to the train neglect the air resistance throughout and take g equal to 10. Okay. Again, if it is moving with 1 meter, अच्छा, ग्राउंड ट्रेन के फ्लोर पे रखा हुआ है, तो अगर इसका वेट mg है तो रिएक्शन भी उसको बैलेंस कर रहा होगा, यानी वर्टिकल में जो फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा. और ये इधर की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, तो फोर्स जो हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट इज 0.1 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज दिस फोर्स कैन बी बैलेंस्ड बाय दिस. ये दोनों आपस में बैलेंस कर लेंगे, ये 0 कर देंगे. नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और वो कितना लगेगा, 0.1 न्यूटन. Are you getting or not? Each and every student reply. Are you getting?
Yes or no? Reply all students. सर अगर ट्रेन में एक बॉडी है और वो ट्रेन ईस्ट में मूव कर रही है, तो उस बॉडी को ट्रेन के अंदर ही ईस्ट जाने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि वेस्ट साइड चलने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ट्रेन है कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? ईस्ट डायरेक्शन में हम्म, एक्सीलरेट कर रही है। हाँ चलो ऐसे हाँ जा रही चलो है, ऐसे ठीक। जा रही है, ठीक। और एक्सीलरेट कर रही है मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हम्म तो अगर उस ट्रेन के अंदर एक बॉडी है तो उसको हम्म ईस्ट डायरेक्शन में मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि वेस्ट डायरेक्शन में मूव करने के लिए ट्रेन के अंदर ही? दोनों 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 साइड में बराबर लगे, क्योंकि वो उसके साथ रेस्ट। ओके सर। वो स्टेशनरी में होगा ट्रेन के साथ। ट्रेन के रेस्पेक्ट में किसी भी डायरेक्शन में जाएगी वो उसको सेम लगाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 5.4. One end of a string length, one end of a string of length L is connected to a particle of mass M, and the other to a small peg on a smooth horizontal table. Uh, if the particle moves in a circle with the speed v, the net force on the particle directed toward the center is. सिंपल है, तो क्या पूछा हुआ है देखोगे आप। If the particle moves in a circle with a speed v, the net force on the particle directed toward the center is centripetal force, है ना? सेंट्रिपिटल फोर्स यानी उसमें जो रस्सी के अंदर टेंशन आएगी, टेंशन ही उसका इनवर्ड फोर्स होगा, यानी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर होगा, है ना? ऐसे है ये, ऐसे घूम रहे अंदर की तरफ, बाहर की तरफ एफ सी, अंदर की तरफ टेंशन, तभी तो बैलेंस है ये पूरा, तभी तो सर्कल में घूम रहा है। बाहर की तरफ एफ सी यानी सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, अंदर की तरफ टेंशन लग रही है, तो टी होगा टेंशन इसका। फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, a constant retarding force of 50 Newton is applied to a body. A constant force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the body take to stop? ओके, बहुत सिंपल है। इसमें देखो, चलो यू तुम लोग खुद लगाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो ए इक्वल टू एफ बाई एम, ए इक्वल टू एफ बाई एम। ओके, ए इक्वल्स टू एफ बाई एम, इफ इट इज 50 अपॉन 20 5 बाई 2, नेगेटिव में आएगा, रिटार्डेशन आएगा, ध्यान रखना। हाँ, उसके बाद लगा लो आप v इक्वल टू यू प्लस, स्टॉप कर जाती है ना, v इक्वल्स टू यू प्लस, v जीरो है दिया हुआ है इसमें, है ना? ये 15 हो जाएगा, u 15 मीटर पर सेकेंड, एंड आप प्लस -5/2, ध्यान रखना रिटार्डेशन है, स्टॉप कर जाता है, इनटू टी। कैलकुलेट द वैल्यू, 6 सेकेंड। गुड,
हो गया, चलो गुड. Okay, read the next question. A constant force acting on a body of mass 3 kg changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of motion of the force remains unchanged. What is the magnitude and direction of the force? बहुत सिंपल है, ये निकाल लो पहले. A equal to B minus U upon T, है ना. A is equals to B minus U upon T. निकालो फटाफट कितना है. उसके बाद F equal to ma लगा देना. सिंपल है. 3.5 minus 2 और अपॉन कितना सेकंड दिया हुआ, 25 सेकंड. जो भी आएगा आपका. 1.5 upon 20. Mass it is given. This is 3 multiplied by 1.5 upon 20. 0.18 न्यूटन. सिंपल है. अब कैलकुलेशन में नहीं बता. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. A body of mass 5 kg is acted upon by two perpendicular forces of 8 Newton and 6 Newton. Give the magnitude and direction of the acceleration of the body. एक किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है. दिस इज 8 न्यूटन एंड दिस इज 6 न्यूटन. पहले तो हमको नेट फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा 8 एंड 6 न्यूटन का, है ना. दोनों वेरी वेल. नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 64 प्लस 36 100, है ना. 100 मीन्स 10 न्यूटन. दोनों का नेट कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन. ठीक है. हाँ, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी दिस. आप किसी से भी हॉरिजॉन्टल से ले लो चाहे वर्टिकल से ले लो, आपको पता है मैग्नीट्यूड तो 10 न्यूटन रहता है. व्हाट विल बी द डायरेक्शन, tan थीटा, लेट अस सपोज दिस इज थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 6/8. थीटा इज इक्वल्स टू tan inverse 6/8. Do fast. Do fast. Tan inverse 8/6 from the horizontal. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अब आगे थोड़ा सा टफ है, पहले सिंपल वाले तो करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 5.8. The driver of a three-wheeler moving with a speed of 36 km/h sees a child standing in the middle of the road and bring his vehicle to rest in 4 seconds, just in time to save the child. है ना. मतलब इसकी इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 36 km/h मीन्स 10 मीटर पर सेकंड, है ना. u इक्वल टू 10, b इक्वल टू स्टॉप कर देना है इसको 0, and t is also given, that is 4 seconds. पूछा क्या इसमें. अच्छा, what is the average retarding force on the vacuum? The mass of the three-wheeler is 400 kg and mass of the driver is 65 kg. अच्छा, तो पहले a निकाल लो.
रिटार्डेशन आ जाएगा a इक्वल्स टू b माइनस u अपॉन t, 0 माइनस 10 अपॉन 4 minus 5 by 2 meter per second square. Force is equals to mass into acceleration. Mass is 400 and plus 65. 465. 465 multiplied by minus 5 by, अब कितना आएगा मुझे नहीं पता, आप लोग देखोगे. नेगेटिव आएगा यानी रिटार्डेशन होगा, सॉरी रिटार्डिंग फोर्स होगा. नेगेटिव आएगा, रिटार्डिंग फोर्स होगा. आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो आंसर पॉजिटिव है, लिख देंगे रिटार्डिंग फोर्स. नो डाउट. टेल मी द आंसर. अब मल्टीप्लाई करके देखना, मुझे नहीं पता कितना है. माइनस माइनस लगाओगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन माइनस नहीं लगाओगे तो मैग्नीट्यूड पूछा है ना. व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन दिस. तो आप लिखोगे जो भी आएगा प्लस में लिख के रिटार्डिंग फोर्स लिख दो. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर. वेरी इजी. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन. A rocket with a lift of mass 20,000 kgs blasted upward with an initial acceleration of 5 meter per second square. Calculate the initial thrust of the blast. Initial thrust. देख लेना जरा. कोई रॉकेट है ना, इसका वेट कुछ लग रहा होगा, इसमें दिया हुआ है. मान लेते हैं mg. है ना, इसमें मान लेते हैं कितना लिफ्ट ऑफ हमको करना है, फोर्स लगाना है, और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन दिया हुआ है a. ना, F minus mg is equals to ma. F is equals to m a plus g. देख लेना ध्यान से. m दिया हुआ 20,000. a is what? a is 5. it is 10. g की वैल्यू ऑफ 10 लेना. a 5 दिया हुआ, मल्टीप्लाई करके बता हम सकते हैं. F minus mg equal to ma. You can write the equation. If it is not clear on the board, you can write yourself. F minus mg equal to ma. F is equals to ma plus mg.
बताओ। डन। आंसर मैच कर लेना, आंसर मैच कर लेना। आंसर इज मैचिंग। आंसर इज मैचिंग और नॉट। Yes, sir. Okay. The next question is a very good question. 5.10. First, read the question. Read the question. बताओ। पढ़ लिया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत आराम से करेंगे इसको। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ है कि अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg moving with a constant speed of 10 meter per second to the north is subjected to a constant force of 8 Newton directed toward the south for 30 seconds. Take the instant the force is applied to Vt equal to 0, the position of the body at the time to be x equal to 0 and predict its position at t equal to minus 5 seconds, 25 seconds and 100 seconds. माइनस दिया हुआ ना टाइम, टाइम माइनस दिया हुआ देख, मैं बोल रहा था ना एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन गिवन है, माइनस दिया। टाइम कैन बी नेगेटिव बट टाइम कैन नेवर डिक्रीज, है ना। रेफरेंस से पीछे दिया हुआ है इसलिए मैं नेगेटिव लगा। देखो क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। This is north and this is south. Okay. Moving with a speed of 10 meter per second to the north is subjected to a constant force of 10 Newton directed toward the south for 30 seconds. मान लेते हैं t इक्वल टू यहां से स्टार्ट, t इक्वल टू 0। ऑब्जेक्ट इधर की तरफ चल रहा था, इसकी वेलोसिटी इस साइड थी। आप पूछ रहे हैं बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टू नॉर्थ, अच्छा टुवर्ड नॉर्थ ऐसे चल, मान लेते हैं यहाँ से। Eight Newton force that is directed toward the south, फोर्स इधर लग रहा है 8 न्यूटन। इधर की तरफ वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। एक चीज याद रखना कि अगर किसी रोड पे अगर कोई बाइसिकल है या कोई पर्सन है, अगर वो इधर की तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी इधर की तरफ है और फोर्स आपका अगर इधर लगेगा तो इसकी स्पीड डाउन होती जाएगी। तो मोशन के अपोजिट लगता है तो इसकी स्पीड डाउन होती है।
है ना, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर की तरफ, उसकी स्पीड धीरे 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 कम होती चली जाएगी। फोर्स जो लग रहा है वो 30 सेकेंड के लिए लग रहा है। और इसमें कहा हुआ है कि t be 0 the position of the body when x equal to 0, यानी यहाँ t में 0 नहीं, यहाँ पे t इक्वल टू 0 भी है और x इक्वल टू 0, यानी फोर्स इसके बाद लगना स्टार्ट, फोर्स इसके बाद लगना स्टार्ट, और 30 सेकेंड तक ये फोर्स लग रहा है। वेलोसिटी इधर की तरफ थी, ध्यान रखना। इसका मतलब फोर्स जो है वो रिटार्डिंग। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, माइनस एफ बाई एम, -8/0.4, है ना, इज 20, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट डाउन, यहाँ से नोट करो, 20 मीटर -20 मीटर पर सेकेंड। पहले क्वेश्चन कहा है t इक्वल टू -5 सेकेंड, इसकी पोजीशन क्या रही हो, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू यूपी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है u। अच्छा, ध्यान रखना इस बात का कि इससे पहले जो फोर्स लग रहा था उससे पहले पूछा हुआ -5 से पूछा है ना। देखो आपसे, द पोजीशन ऑफ द बॉडी at the time x equal to 0, predict its position at t equal to -5। -5 यानी 5 सेकेंड पहले वो कहाँ रहा होगा, यानी 0 से 5 सेकेंड पहले वो कहाँ रहा होगा। 0 से 5 सेकेंड पहले कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आया, ये वाला टर्म 0 हो जाए। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यू आ रहा, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय टी कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड, 5 हो गया। कितना लगा यहाँ पे, तो -5 टाइम्स पीछे की तरफ होगा, यानी -50 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में। दूसरा सवाल पूछा हुआ है कि t इक्वल टू 25 सेकेंड। एक बार और याद रखना है आपको कि ये कब जाके स्टॉप हो जाता है, ये कब जाके स्टॉप, देखो अपोजिट अपोजिट लग रहा है ना फोर्स, तो v इज इक्वल टू u प्लस एटी के अकॉर्डिंग कब स्टॉप हो जाएगा, v0 u10 अब प्लस ए जो दिया हुआ है वो कितना है, -20 इंटू, ठीक है। इसको छोड़ दो, इसी जरूर बताओ। सेकेंड वाले में क्या पूछा हुआ है, 25 तक ना, ठीक है, लेकिन 25 में एक्सेलरेशन लग रहा है, तो यहाँ पे s
is equals to ut plus half at square. S is equals to 10 multiplied by 25 plus minus 20 into 25 square. Solve it. Solve it. कितना आएगा? -6000 मीटर. ठीक, -6000 नहीं है, यानी -6 किलोमीटर. थर्ड वाले में देखना है आपको, फोर्स 30 सेकेंड तक लग रहा है और पूछा हुआ है 100 तक. फोर्स आपका 30 दिया हुआ है, इतना 100 सेकेंड, लेकिन फोर्स जो लग रहा है वो t इक्वल टू 30 सेकेंड तक ही लग रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट यहां से चलेगा, है ना, तो 30 सेकेंड तक तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा, है ना, लेकिन इसके बाद का जो पोर्शन है यानी 70 सेकेंड जो बचा हुआ इसमें एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से यहां तक का निकालेंगे और फिर यहां से यहां तक का दोनों अलग अलग निकालेंगे. ये हमारा S1 हो जाएगा, ये हमारा S2. S1 अगर आप निकालोगे तो 30 सेकेंड तक के लिए निकाल लो. लिखा इसमें कि X1 निकालना 30 सेकेंड तक का, तो U 10 into 30 plus 1/2 minus 20 into 30 स्क्वायर, है ना. 30 सेकेंड तक का निकाल लो. एक्सेलरेशन भी इसमें लगे. कैलकुलेट इट फास्ट. देखो S2 निकालने के लिए एक प्रॉब्लम है. देखो यार, हाँ, इधर इधर देखो ध्यान से. क्या है, यहां से यहां जा रहा है. यहाँ पे तो इनिशियल स्पीड 10 दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ के बाद फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? अल्टर होगी. बोल, इसकी स्पीड अल्टर होगी. और यहां से जब यहां तक की बात निकालेंगे तो दिस विल बी द इनिशियल स्पीड फॉर दिस जर्नी. इस जर्नी के लिए आपकी इनिशियल स्पीड यहाँ पे कुछ और हो जाएगी. ठीक है, तो इस जर्नी के लिए, इस जर्नी की जो फाइनल स्पीड होगी यहाँ से यहाँ तक के जर्नी के लिए, वो इनिशियल स्पीड हो जाएगी. तो यहाँ पे s इक्वल टू ut प्लस यहाँ तक स्क्वायर लगाएंगे. तो इन केस ऑफ यू कैन नॉट राइट 10, ध्यान रखना, क्योंकि इनिशियल स्पीड यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी. इस वाली जर्नी के लिए कुछ और होगी, बिकॉज यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो इसकी स्पीड में अल्टरेशन होगा. समझ रहे हो बात? इस जर्नी के लिए इनिशियल स्पीड तो 10 है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी 10 थी. लेकिन जब 30 सेकेंड के लिए फोर्स अप्लाई हो जाएगा
उसके बाद यहाँ पे स्पीड इसकी कुछ और हो जाएगी। तो इस जर्नी के लिए u इक्वल टू 10 नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का, ये नहीं होगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से निकालना पड़ेगा फाइनल स्पीड जो कि हमको निकालना है, एंड इनिशियल स्पीड 10 एंड प्लस माइनस 20 इंटू 30, है ना। तो 10 माइनस 600 मीन्स माइनस 590 मीटर पर सेकेंड। अब हम जब S2 निकालेंगे तो इनिशियल स्पीड माइनस 590 मल्टीप्लाइड बाई 70 सेकेंड के लिए निकालना है, और फिर प्लस 0 क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होगा इसमें बिकॉज नो फोर्स इज एक्टिंग। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई करके बता कितना है, 590 मल्टीप्लाइड बाई 70, देखो कितना आ रहा है, -41300 -41300 मीटर। तो ये और ऊपर कहा गया ये वाला 8700, इन दोनों को ऐड कर दो, 8700 41300 50,000 आ रहा है, 50,000 मीटर, है ना। यानी कि 50 -50 आएगा, माइनस है सब, तो -50 किलो, सीधा आंसर। सीधा आंसर -50 किलोमीटर, इट शुड बी। डन। ओके, हाँ -50 आया, ठीक, दोनों को ऐड कर देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप खुद से करना, सॉल्व करना। ओके, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Read the next question. A truck starts from rest and accelerates uniformly with 2 meter per second square. At t equal to 10 seconds, a stone is dropped by a person standing on the top of the truck 6 meter high from the ground. What are the velocity acceleration of the stone at t equal to 11 seconds? Neglect the air resistance. क्वेश्चन को पढ़ो फिर से। बोला कि 6 मीटर हाई ट्रक है, इसके टॉप से यहां से थ्रो किया जाता है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि accelerate from rest and uniformly with 2 meter per second square at t equal to 10 second। ये रेस्ट से एक्सेलरेट करना स्टार्ट करता है ना, और यानी u इक्वल टू 0 और एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इक्वल टू 10 सेकेंड, t इक्वल टू बोला है 10 सेकेंड। A stone is dropped by a person standing on the top of the truck 6 meter high from the ground. What are velocity and acceleration of the stone at
11 सेकेंड। पहली बात तो ये 10 सेकेंड तक आगे जाएगा, है ना? 10 सेकेंड तक ये आगे जाएगा। इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी है ना? कैसे कैलकुलेट करें? v इक्वल्स टू u प्लस a। u it is 0 plus a it is 2 and it is 10 means 20 meter per second, 20 meter per second in this direction, ट्रक की बात, ठीक है ना? 20 मीटर पर सेकंड। फिर इसके बाद बोला है कि इसको इसने क्या किया, ड्रॉप कर। ध्यान रखना इस बात को कि इसने क्या किया, ड्रॉप कर। इसको ड्रॉप कर दिया तो अब इस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक ही लगेगा, 10 सेकेंड तक ही लगेगा, क्योंकि उसको ड्रॉप कर दिया। अब उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला, उस पर एक ही फोर्स लगता है, कौन सा? ग्रेविटेशनल। तो ये इसका डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, इसका एक्सेलरेशन कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड। यहाँ पे इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u 0 है, ड्रॉप किया गया। a कितना है? 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड कितने सेकेंड के लिए? 1 सेकेंड। तो कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? 10 मीटर पर सेकेंड। एक बात याद रखना कि 6 मीटर दिया हुआ है पूरा, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 6 ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, है ना? एस 6 मीटर दिया हुआ है, u ड्रॉप किया गया है, अब प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, 12 हो जाएगा, और अपॉन 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट 1. मीन्स ये ग्रेटर देन 1 है ना, ग्रेटर देन 1 है। क्यों ये क्यों निकाला? क्या ये 1 सेकेंड तक एयर में रहेगा या नहीं रहेगा? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि 11 सेकेंड पे निकालना है, 11 सेकेंड, 10 सेकेंड तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लग गया। 1 सेकेंड के बाद पूछा कि 11 सेकेंड में निकाल, यानी कि जब ये ड्रॉप करता है उसके बाद कम से कम 1 सेकेंड जर्नी करनी पड़ेगी, कम से कम 1 सेकेंड इसको जर्नी करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 1 सेकेंड से पहले ही ग्राउंड को टच कर रहे, और पूछा 1 सेकेंड के बाद, पूछा आपसे क्या है? 1 सेकेंड के बाद, और इसमें ऐसा तो नहीं कि 1 सेकेंड से पहले ही ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितने टाइम पे ये ग्राउंड को हिट करेगा, तो इतने टाइम पे ग्राउंड को हिट करेगा, दिस इज ग्रेटर देन 1 सेकेंड। यानी आपसे अगर 11 सेकेंड में पूछा हुआ है कि इसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि 1 सेकेंड के बाद ही, 1 सेकेंड के बाद ही ये ग्राउंड को हिट करना है, ठीक? तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, 10 और 20 दिया हुआ है, दोनों का आप रिजल्टेंट ले सकते हो, दोनों का रिजल्टेंट लेके नेट वेलोसिटी आपकी निकल जाएगी, ठीक है? 10 और 20 चलो 22 होना चाहिए ना, जब 11 सेकंड लिए हैं हाँ, तो 20 क्यों होगा? 22 होना चाहिए ना, 11 सेकंड भी तो इंक्लूड कर रहे हैं, तब ना v हमारा 10 आया डाउनवर्ड वाला। 10 सेकेंड से छोड़ दिया गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, यस, अच्छा, छोड़ने के बाद उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, क्योंकि फ्री हो गया। यस, और 10 और 20 का आप ले लोगे, जो भी आपका रिजल्टेंट आएगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है? और अगर बात करें इसमें नेट एक्सेलरेशन की, तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, नेट एक्सेलरेशन विल बी डाउनवर्ड एंड दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि इसको फ्री कर दिया है। अब इसमें इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा,
जो भी एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड। ठीक है, ठीक है, इतना क्वेश्चन करना आप लोग, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको करना। अगर कल पूछोगे तो बता दूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखते हैं कल कुछ और क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, ओके, राइट योर अटेंडेंस एंड लीव द क्लास। Write your attendance and leave the class. Thank you. Sir, बताओ। sir, I have a doubt from chapter 4. Chapter 4. Yes, sir, sir. What is your doubt? I send, sir, I have sent you in your WhatsApp number. Okay, tomorrow I will discuss. Okay, sir. Okay.